خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت اور جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں زندگی، صحت اور سلامتی، زندگی کی بے شمار نعمتیں اور برکتیں عطا کی اور زندگی میں یہ خوبصورت موقع فراہم کیا تاکہ ہم زندہ خدا کی حضوری میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ جھکے ہوئے اس کی پرستش، اس کی ستائش، اس کی تمجید کرتے ہوئے، اس کے نام کو جلال دیتے ہوئے کلام حق میں سے اپنی رہنمائی کو حاصل کریں تاکہ اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو ڈھال کر 30، 60، 100 گنا پھل لائیں اور اس کے نام کو اور اس کے کلام کو جلال دینے کا باعث بنیں۔ آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج ہم کلام اقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے ایک خوبصورت ٹاپک پر بات کریں گے کہ خدا ہماری امیدوں سے بڑھ کر بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اس کے لیے ایک حوالہ پڑھیں گے، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا 15واں باب اور اس کی آیت نمبر 19۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط، اس کا 15واں باب، آیت نمبر 19۔ کلام خدا میں مرقوم ہے، اگر ہم اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت ملے۔ آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ موجود ہیں جو مشکلات میں، مسائل میں، دکھوں میں یا بیماری یا لاچاری یا کمزوری کی حالت میں یا ناسازگار حالات و واقعات میں پھنسے ہوئے امید کا، ایمان کا دامن چھوڑ دیتے۔ لیکن یاد رکھیں، ہمارا خدا امید کا خدا ہے، بلکہ ہمارا خدا ہماری امیدوں سے، ہمارے ایمان سے، ہمارے بھروسے سے بڑھ کر ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس ان باتوں کا واضح اور ٹھوس ثبوت فراہم کرتی ہے۔ بائبل مقدس کے اندر ایسی ڈھیروں مثالیں موجود ہیں کہ خدا ہماری امید سے، خدا ہمارے ایمان سے، خدا ہماری توقعات سے بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ کیونکہ بائبل مقدس میں سے جب ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ کو پڑھتے ہیں تو پچھلے سنڈے بھی ہم نے بیت حسدا کے حوض کے تعلق سے کچھ باتیں، سچائیاں سنی اور سیکھی اور جانی تھی۔ آج بھی اسی کا ایک ٹچ میں آپ کو دیے دیتا ہوں کہ بیت حسدا کے حوض کے کنارے بہت سے لاغر، بہت سے دکھی، بہت سے بیمار اور لاچار خدا کے رحم اور خدا کے فضل کے منتظر پڑے ہوئے تھے، اور اس میں ایک ایسا شخص جس کی 38 سال تک باری نہ آئی، وہ بھی خدا کے رحم اور خدا کے فضل کے انتظار میں وہاں پڑا رہا۔ وہ بھی اس امید کے ساتھ پڑا رہا کہ کبھی نہ کبھی خدا مجھ پر رحم کرے گا، خدا مجھ پر ترس کھائے گا، خدا مجھ پر فضل کرے گا، میری باری آئے گی اور میں یہاں سے شفا پا کر، بحال ہو کر، تندرست ہو کر اپنے گھر کو لوٹ جاؤں گا۔ اس کے اندر ایک امید، اور اسی امید نے اسے فضل
रहम के घर पर पड़ा रहने पर मजबूर किया, और वो 38 साल तक खुदा के रहम और खुदा के फजल के घर के सामने बैठा रहा, खुदा के फजल और खुदा के रहम का इंतजार करता रहा कि खुदा मुझ पर रहम करेगा, खुदा मुझ पर फजल करेगा, खुदा मुझे बहाल करेगा, खुदा मुझे शिफा देगा, खुदा मुझे तंदुरुस्त करेगा। 38 साल तक वो मुंतजर रहा, 38 साल तक वो खुदा का इंतजार करता रहा। बिलाखिर खुदा का बेटा जो रहम और तरस से भरा हुआ, जिसने मेरे और आपके लिए आसमान को छोड़ा, जमीन पर आ गया, इंसानों की शक्ल इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा होकर इंसान की भलाई के लिए, इंसान की बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी शफा के लिए, उसकी बरकत के लिए, उसकी बहाली के लिए, इंसान पर रहम करने के लिए, तरस करने के लिए, फजल करने के लिए उसने अपनी जान दी और बतेरों के लिए गुनाहों की माफी को जारी किया। और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह रहम और तरस से भरा हुआ 38 साल के मुंतज़िर शख्स के पास गया और उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उसने जवाब दिया कि मैं तंदुरुस्त तो होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा शख्स नहीं जो मुझे खुदावंद के फरिश्ता के हौज के पानी को हलाते वक्त मुझे हौज में उतारे। तो यीशु मसीह ने उसकी उम्मीद से बढ़कर, उसके ईमान और भरोसे से बढ़कर उसकी जिंदगी में काम किया, क्योंकि उसके अंदर उम्मीद थी कि मैं हौज के पानी में उतरूंगा और शफा पाकर अपने घर को लौट जाऊंगा, मैं तंदुरुस्त होकर अपने घर को लौटूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने रहम और तरस से, फजल से भरे हुए यीशु मसीह ने उससे कहा कि तेरी उम्मीद से बढ़कर मैं तेरी जिंदगी में काम करना चाहता हूं। तू हौज में उतरने की बात करता है, तू इस बात की उम्मीद रखता है कि मैं हौज में उतरूंगा तो तुझे शिफा मिलेगी, लेकिन मैं तुझे कहता हूं अपनी चारपाई उठा और चल, अपने घर को लौट जा। तो वो उसी घड़ी तंदुरुस्त हो गया। इसका मतलब है कि खुदा हमारी उम्मीदों से बढ़कर, खुदा हमारी तवक्कुआत से बढ़कर, खुदा हमारे ईमान और भरोसे से बढ़कर अजीबोगरीब और बड़े बड़े काम करता हो, और शफा को, बरकत को, बहाली को, नजात को वो जारी और सारी करता है। और फिर हम बाइबल मुकद्दस में से एक और बड़ी खूबसूरत दलील, ठोस सबूत इमाल की किताब में हम देखते हैं कि इमाल की किताब के अंदर साफ और वाज़ेह है कि पतरस और यूहन्ना लिखा है कि दुआ के वक्त हैकल में गए, और जब वो हैकल में दाखिल हुए तो हैकल की इंट्रेस पर, हैकल के दरवाजे पर एक जन्म का लंगड़ा पड़ा हुआ, जो जन्म से लंगड़ा, जो पैदाइशी तौर पर लंगड़ा पैदा हो, वो वहां पर बैठा हुआ, और वो वहां बैठकर किया क्या करता था, जो हैकल के अंदर आते, इबादत करके वापस जाते, उनसे वो भीख मांगा करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि जब पतरस और यूहन्ना दुआ करने के लिए दोपहर के वक्त हैकल के अंदर जा रहे थे, तो दरवाजा पर वो भिखारी, वो जन्म का लंगड़ा, उसने पतरस और यूहन्ना से मामूल के मुताबिक भीख मांगी, क्या खुदा के लोगों मुझे भी कुछ देते जाओ।
क्योंकि वो रूटीन के मुताबिक भीख मांग रहा था। लेकिन लिखा है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भी रूटीन के मुताबिक और लोगों की तरह भीख मांगी। मगर पतरस और यूहन्ना ने, लिखा है कि उस पर गौर से नजर की। आम तौर पर देखना कुछ और होता है, मगर गौर से देखना कुछ और होता है। और पतरस और यूहन्ना ने लिखा है कि उसे गौर से देखा, उस पर गौर से नजर की, और पतरस ने उससे मुखातब होकर कहा, हमारी तरफ देख। और जब उस बकारी ने पतरस की आवाज को सुना कि पतरस उससे मुखातब है कि हमारी तरफ देख, तो उसने पतरस और यूहन्ना की तरफ, लिखा है कुछ मिलने की उम्मीद से, पतरस और यूहन्ना की तरफ गौर से देखा। वो मतवज्जो हुआ कुछ मिलने की उम्मीद से। उसके जहन के अंदर यह ख्याल था कि जरूर आज ये मुझे कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। और पतरस और यूहन्ना की तरफ जैसे ही उसने मुड़कर देखा, गौर से देखा, मतवज्जो हुआ, तो पतरस और यूहन्ना ने क्या जवाब दिया? पतरस क्या बोला कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, उठ और यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और उसका हाथ पकड़ा और उसे उठा खड़ा किया और वो चलने फिरने लगा। उसकी उम्मीद से, उसकी तवक्को से बढ़कर खुदा ने वहां पर काम किया, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि कुछ ना कुछ रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये मुझे देकर जाएंगे। लेकिन खुदा ने उसकी तवक्को से बढ़कर, उम्मीद से बढ़कर खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया, और खुदा ने उसकी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। उसकी जिंदगी के अंदर मौजना कुदरत के साथ वो लाचारी, वो लंगड़ापन जो अरसा दराज से था, खत्म कर दिया। और याद रखिए, हमारा खुदा और हमारा खुदा का बेटा यीशु मसीह सिर्फ इसी जिंदगी में, इसी दुनिया में ही वो बड़े बड़े काम नहीं करता या हमारी रूहानी जिस्मानी जरूरियात को पूरा नहीं करता, बल्कि आने वाली जिंदगी में भी वो हमारे लिए हमेशा की जिंदगी रखता है। वो हमें आइंदा जिंदगी में हमेशा की जिंदगी दे। मुस्तकबिल में हम इस बात के मुंतजर हैं कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देगा, क्योंकि वो हमारी उम्मीद से बढ़कर काम कर देगा। आमीन। आमीन। उसी जिंदा खुदा जो हमारी उम्मीद से, हमारे ईमान से, हमारे भरोसे, इत्मीनान से बढ़कर काम करता है, उसी पर हमेशा इत्मीनान और भरोसा और उम्मीद और आस रखिए, क्योंकि वो हमारी उम्मीदों से बढ़कर काम करता है। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।